Hello my dear student, today I will discuss about a very important topic of solution chapter, colligative properties. The first question is, what is colligative properties? Then colligative properties are those properties which depend on the number of solute particle but not the nature of solute particle. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करती है. ऐसा इसका नाम ही है colligative properties. Basically 4 types. Number 1 is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, and last one is osmotic pressure. These are 4 colligative properties. One is relative lowering in vapor pressure, second is elevation in boiling point, next is depression in freezing point, last one is osmotic pressure. So we will discuss about one by one. First is relative lowering in vapor pressure. Then the question is, what is vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? Suppose there is a solvent in a beaker. किसी भी बीकर में कोई सॉल्वेंट है और इसको हीट किया जा रहा है, तो इसका कोई ना कोई प्रेशर, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा. उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं. यहाँ पे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे. अगर इसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, इस सॉल्वेंट में कोई अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, इस सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस लाइक NaCl, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, इसमें ऐड करें. देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will less than the vapor pressure of original solvent. क्या होगा? इन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मिक्स कर देने से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. इसको अगर और हम आगे फर्दर सॉल्व करें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A which is solvent is equal to vapor pressure of pure component and its mole fraction. Then vapor pressure of component B is equal to vapor pressure of component and its mole fraction. In this case, the vapor pressure of solution is due to only the vapor pressure of pure solvent, because the solute particles are not responsible for the vapor pressure. Then PS will be P naught into chi A. Vapor pressure of solution P naught is equals to chi A. ये सॉल्व होके आ रहा है. इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
PS upon P naught is equals to 1 minus chi A. By solving this, P naught minus PS upon P naught is equals to 1 minus chi A is equals to chi B. 1 minus chi A how? Chi A plus chi B. The sum of the mole fraction of component present in the solution is always unity. Then 1 minus chi A is equals to chi B. Now this is called relative lowering in vapor pressure, where P naught vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of the solution, and vapor pressure of pure component, pure solvent, which is equal to mole fraction of the solute. This is called relative lowering in vapor pressure. Now move towards next. इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इनके सारे फंक्शंस को याद रखना होगा. नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन. Suppose we have a solution containing non-volatile solid. For example, ये pure solvent था, कोई भी pure solvent, water consider कर लेते हैं. This is the water. और इसमें हमने कोई ग्लूकोज, सुक्रोज, सपोज ग्लूकोज ऐड कर दिया. Then solution का जो boiling point है वो pure solvent के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा. Then जो इंक्रीजमेंट होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सपोज इसमें कुछ अमाउंट हमने ग्लूकोज मिला दिया तो डेफिनेटली ग्लूकोज के मिक्स कर देने से इसका जो नेट बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसको डेल्टा टीबी से डिनोट किया जाता है. Delta for change, T for temperature, B for boiling, delta TB. It is called elevation in the boiling point, which is equals to boiling point of the solution, which is TB minus boiling point of pure solvent, TB naught. Please mind the symbol delta TB, elevation in the boiling point, TB boiling point of the solution माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. एक्सपेरिमेंटली इसको अगर कैलकुलेट करें देन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. डेल्टा प्रैक्टिकली देखा जाए तो डेल्टा टीबी इट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. प्रोपोर्शनल कैसा निकालेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, वेयर केबी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू मोलैरिटी. ये आपका फार्मूला आ गया. इसको और अगर m की वैल्यू मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं देन फार्मूला बिकम्स डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी. व्हाट इज मोलैरिटी? WB mass of the solute divided by molar mass of the solute. 1000 divided by mass of solvent. With this formula you can solve so many problems. हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके आते हैं. I hope get the point. Now we will move towards depression in freezing
पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जिस तरीके से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था उसी तरीके से इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव अ सॉल्वेंट, कोई एक सॉल्वेंट है, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज इसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड कर देने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ पॉइंट्स की, कुछ डिग्रीज की कमी आ जाएगी। उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स बोलते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्रीजिंग पॉइंट की कमी होगी तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Depression in freezing point is represented by delta TF, which is equals to solution, और solvent में freezing point ज्यादा होगा आपके solution का, solvent का freezing point, then it will be TF naught minus TF. This is the freezing temperature. मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बाय रिड्यूसिंग दिस, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF डॉट M, where KF is proportionality constant. It is also called molar depression constant. By putting the value of M means molarity, it becomes delta TF is equals to KF dot WB divided by MB into 1000 divided by WA. Please focus the point. Delta TF is depression in freezing point, KF molar depression constant, WB mass of the solute which is dissolved in the solution, MB molar mass of that solute 1000, उसको कन्वर्ट करने के लिए WA mass of the solute। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम, ज्यादातर क्वेश्चंस में आप किसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास MB कैलकुलेट कराया जाता है प्रॉब्लम्स में। इस टाइप के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में बहुत सारे गिवन हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। आप इन वैल्यूज को पुट करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि डिफरेंट अननोन सब्सटेंस के मोलर मास को कैलकुलेट कराया जाएगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक होगा जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम समअप करेंगे। नेक्स्ट इज next term is osmotic pressure. ओस्मोटिक प्रेशर के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं जिसमें ओस्मोटिक प्रेशर एप्लीकेबल है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।